Good morning, class 10th. Hope you all are doing well. Students, today we are going to discuss laws of refraction. Okay, students? So, let's start. So, students, the refraction of light takes place according to two laws of refraction. हमें कितने laws of refraction पढ़ने हैं? Two. There are two laws of refraction. So students, first law of refraction is the incident ray, the refracted ray. बच्चे इस चीज का ध्यान रखना, जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे वहां पे यहाँ पे इसकी जगह क्या था? रिफ्लेक्शन. सो बच्चे दोनों वर्ड्स अलग हैं, एक है रिफ्लेक्शन, एक है रिफ्रैक्शन. सो बच्चे एक रिफ्लेक्टेड रे है एंड अदर इज रिफ्रैक्टेड रे. सो स्टूडेंट्स, डोंट कंफ्यूज. The incident ray, the refracted ray and normal to surface at the point of incidence, all in the same plane. बच्चे क्या मतलब है इस लॉ का कि जो इंसिडेंट रे है और जो हमारी रे रिफ्रैक्टेड हो रही है और जो हमारा नॉर्मल है सरफेस पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, सब क्या है? एक प्लेन पे लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, क्लास 10th, लुक हियर. द इंसिडेंट रे AO. AO क्या है? इंसिडेंट रे. ओके स्टूडेंट्स, एंड OB इज द रिफ्रैक्टेड रे. जो लाइट रे बेंड हो रही है दैट इज द रिफ्रैक्टेड रे. एंड नॉर्मल NO and dash. AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द रिफ्रैक्टेड रे एंड NO and dash इज द नॉर्मल रे. मैं यहां पे लिख देती हूं. AO इज द इंसिडेंट रे, OB इज द refracted ray. Okay students, and NO and dash is the normal. So students, all lie in the same plane, in the plane of the paper. Okay students, तीनों lines जो हैं, तीनों rays जो हैं कहाँ पे lie कर रही हैं? In the same plane. So this is our first law. The incident ray, the refracted ray and normal to surface at the point of incident all lie in the same plane. Okay students? So students, next law is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media. Media is for medium. So बच्चे, आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसकी रेशियो साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के जो है, इन दोनों की रेशियो किसके इक्वल होगी? किसी कांस्टेंट के इक्वल होगी. ओके स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज इट इज इक्वल्स टू n/1. n is the symbol for refractive index. So students, n/1 is the constant for a given pair of media and is called refractive index of, हम इसको क्या बोल सकते हैं? refractive index of second medium with respect to the first medium. Okay students? So students, refractive index of second medium with respect to the first medium is n/1. Okay students? And students, this equation is called Snell's law of refraction. इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? Snell's law of refraction. So students, क्या है ये? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant for a given pair of media, and this is also called as Snell's law of refraction. And students, this law is valid for both plane and spherical refracting surfaces. Okay students? So students, अभी मैंने बात की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की. सो बच्चे पढ़ लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. सो बच्चा,
The refractive index of a medium is defined as the ratio of speed of light in vacuum to the speed of light in the medium. So students, refractive index क्या हो गया? Speed of light in vacuum to speed of light in medium. इन दोनों की ratio and it is denoted by the letter n, small n. Students, when light travels from one medium to another medium, it bends towards the नॉर्मल. बच्चे हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में. द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकंड मीडियम. हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में कि जो स्पीड ऑफ लाइट है, जो हमारी बेंडिंग ऑफ लाइट है, वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड ऑफ लाइट में इन द सेकंड मीडियम कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम. सो स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम क्या आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम. अगर हम इसको फर्स्ट मीडियम मान ले तो स्पीड ऑफ लाइट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट विद ऑफ रिफ्रैक्टिव ऑफ सेकेंड मीडियम. जो भी हम मीडियम लेंगे, इसको अगर हम सेकेंड मीडियम ले लें तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया सेकेंड मीडियम का. तो इन दोनों की रेशियो को हम क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड इट इज डिनोटेड बाय C अपॉन V. C आ गया टू डिनोट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड V आ गया स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं एक एग्जाम्पल. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अगर हमने ग्लास हमारा क्या है? मीडियम है. अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ग्लास का तो कैसे सॉल्व करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास. सो बच्चे, हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में स्पीड ऑफ लाइट डिस्कस किया था. स्पीड ऑफ लाइट एयर में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. सो this and this will cancel out and 3/2 is equals to 1/5. सो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या आ गया? 1.5. यह आपने याद रखना है बच्चे, ये बड़ी बार आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है. सो बच्चे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? 1.5. सो स्टूडेंट्स, लेट अस टेक सम अनदर एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल, अगर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो किसका? वाटर का, तो बच्चे क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. कैसे निकालेंगे? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. स्पीड ऑफ लाइट मैं आपको बता चुकी हूं. वाटर में लाइट इन एयर कितनी आ जाएगी? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी होती है बच्चे? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड. दिस एंड दिस विल कैंसल आउट. सो बच्चे, 3/2.25 कितना आ जाएगा? दिस बिकम्स 1.33 एंड 1.33 is the refractive index of water. सो बच्चे, 1.33 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है? वाटर का. ओके बच्चे, 1.5 किसका आ गया? ग्लास का. 1.33 किसका आ गया? वाटर का. इसी वे में जो है हम बाकी जो है आपकी उनका भी हम क्या निकाल सकते हैं? बाकी मीडियम्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सो बच्चे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये जो है एग्जाम्स में भी पूछते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो क्लास 10 इन टूडेज वीडियो लेक्चर हमने क्या क्या पढ़ा? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो बच्चे, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? रिफ्रैक्शन क्या होती है और उसके दो केसेस की किस किस वे में जो है रिफ्रैक्शन होती है. अब बच्चे, कंडीशन फॉर नो रिफ्रैक्शन, वो कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन में कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी? सो बच्चे, रिफ्रैक्शन कब नहीं होगी? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ बाउंड्री. वो कौन सा केस है आपका? व्हेन लाइट इज इंसिडेंट normally on a boundary.
जब आपकी लाइट जो है नॉर्मली इंसिडेंट होगी बाउंड्री के ऊपर, तब आपकी जो है वहां पे क्या कंडीशन आएगी, वहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी। सपोज ये हमारी लाइट जो है ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली ए बी। सो बच्चे एक्स वाई इज द बाउंड्री ऑफ द मीडियम 1, ये हमारी बाउंड्री आ गई मीडियम 1 की एंड मीडियम 2। सो बच्चे अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन मीडियम 1 फॉल्स नॉर्मली ऑन द बाउंड्री एक्स वाई। सो बच्चे एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या आया इस केस में, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा क्या आया बच्चे 0 डिग्री। अभी हमने पढ़ा स्नेल्स लॉ, तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हमने क्या पढ़ा, स्नेल्स लॉ में क्या होता है, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर किसके इक्वल होगा, n2 अपॉन n1, या फिर कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमने ले लिया n2 अपॉन n1। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन ऑफ मीडियम 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है ना आपका। सो बच्चे साइन आई अपॉन साइन आर क्या आ गया, n2 अपॉन n1। ठीक है, ये n2 अपॉन n1 क्या आया, हमने क्या पढ़ा था, जो आपका जो है साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है ना। जो कांस्टेंट है वो हमने क्या ले लिया, हमने क्या पढ़ा था, जो साइन आई अपॉन साइन आर क्या है बच्चे, कांस्टेंट के इक्वल है ना। हम इसको क्या ले रहे थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू n21। तो ये n21 जो है ये किसके इक्वल आएगा बच्चे, n2 अपॉन n1। सो साइन आई अपॉन साइन आर भी किसके इक्वल होगा, n2 अपॉन n1, या फिर आप इसको इस वे में भी लिख सकते हो, n1 साइन ऑफ आई इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ आर, ये विच इज अनदर फॉर्म ऑफ स्नेल्स लॉ। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमने यहाँ पे यूज किया है n2 अपॉन n1। सो बच्चे हमारे पास साइन आर क्या आ गया, n1 अपॉन n2 साइन ऑफ आई, इसको हमने दूसरी साइड ले लिया। तो साइन आर हमारे पास साइन आई क्या है बच्चे 0, n1 अपॉन n2 क्या आ गया हमारे पास, साइन आई जो है वो हमारे पास क्या है, साइन 0 डिग्री है ना। तो हमारा साइन 0 क्या होता है 0, तो दिस होल बिकम्स 0। तो आपका जो आर है वो क्या आ गया, आर आपका क्या आ गया 0 डिग्री। सो बच्चे मीडियम 2 लाइट पासिस अलोंग in medium 2 light passes along OB perpendicular upon XY because R is equals to 0 with the incident ray AO, thus there is no deviation in the ray at the boundary XY। यहाँ पे कोई भी bending of light नहीं होगी। So this is the case in which there is no refraction। So बच्चे condition for no refraction क्या है, when light is incident normally on a boundary, जब भी आपके बाउंड्री पे लाइट जो है इंसिडेंट नॉर्मली होगी हमेशा, जो उस केस में कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होगी, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड ऑल्सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो 0, सो देयर इज नो डेविएशन। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम नेक्स्ट रिफ्रैक्शन के ऊपर और डिस्कस करेंगे, और टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन टूडेज वीडियो लेक्चर यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप चैट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।